Hello students, last time we started binary codes, chapter number 3 and unit 1. So in BCD code, we discussed 8421 system, 2421 and one another code. So all the codes that we discussed last time, all were positively weighted code. So today we will discuss negatively weighted code also and some other coding system. So binary codes, I hope the requirement is clear. Whenever we have to write something, we need coding system, and here 0 to 9 is represented by some fixed number of 4 bits. So the code designed to represent only numeric data, decimal digits 0 to, that will be 0 to 9, can be classified into two categories. One is weighted, one is non-weighted. And alphanumeric codes that can represent both alphabetic and numeric data, we use a third class that is called alphanumeric codes, and this third class of code is designed for error detection and correction purpose. Means basically if we are using some typing device, means keyboard or any other sending sending equipment, so we need multiple options, multiple symbols. Here the symbol may be meta character, or the symbol may be A to Z, maybe 0 to 9 and something else. So alphanumeric codes we use, that is ASCII code, extended ASCII, EBCDIC. So we will discuss alphanumeric codes also at the end of the chapter. So first one is weighted code. Last time we started weighted code. What is the meaning of weighted code? As we have decimal numbers 5658. So every digit have its place value, and according to the place value we denote the digit, that is 1000 or 100 or in tens. So students, last time we discussed positively weighted code only. So there are several weighted codes. The weighted codes are either positively weighted or negatively weighted. Positively weighted codes are those in which all the weights assigned to the binary digits are positive. Means 8421, see, 8421, 2421, 5211, 3321 I have not covered in this topic, but if you see the book contents, you can find some more coding system also. So there are 17 positively weighted code. All we cannot discuss in class, even we cannot remember all these. So 8421 and 2421 and 5211 are sufficient for you. In these codes, the first must be 1, the second must be 1 or 2, and the sum of all weights must be equal to either 9 or greater than 9, means 2 or greater than 9. Some spelling mistakes are there, it is downloaded from the internet, so greater spelling is wrong. So the code 8421, 2421, 5211, 3321. Students, please sum up the code weights. 8, 4, 12, 12 plus 2, that is 15 plus 1, 16. Here 8 plus 1, this 2421 total weight is, means 2421. 2 plus 4 plus 2 plus 1, that will be 9. Next 5211, that is again 9. In 3321, this code we have not covered, but we can check out the sum of the weights. 6 plus 2, 8 plus 1, that is 9. Again 9. So these are some weights, and whenever we have positively weighted code or negatively weighted code, the sum must be either 9 or greater than 9. Is it clear? क्यों है 9 से ज़्यादा या 9? क्योंकि कोई भी हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 to 9 तो हमें रिप्रेजेंट करना ही है, तो वेट्स कुछ इस तरह से हों कि जो टोटल है सबका वो भी हमारा 9 तो बन ही जाए, 9 से ज़्यादा बन सकता है, जैसा 8421 में 16 था. ठीक है स्टूडेंट्स, अब बारी आती है नेगेटिवली वेटेड कोड की. Negatively weighted codes, some of them are assigned to the binary digits must be negative. For example, 642 minus 3. 642 minus 3. अब वेट का एक बार टोटल कीजिएगा, that is 12 minus 3 is 9. Again 631 minus 1, again 9. 84 minus 2 minus 1, that is 12 minus 3, again 9. And 74 minus 11 minus 3, 11 minus 3, that is 8, are some of the negatively weighted code.
it have some problem, I hope so, because the sum of the negatively weighted code must be 9. It is 8. 7, 4, 11, and 11 minus 2 is 9. 9 minus 1 is 8. So we have to check out either table is given or not, but these three are totally correct. The sum is 9. All of these codes given in the table are weighted codes. Since each bit position in the code have a weight associated with it, the sum of weights corresponding to each non-zero bit in the code is the decimal digit represented by it. So let's see the table. देख लीजिए इस टेबल के अंदर अगर हम देखें इनिशियली वेट्स को ज़ीरो का की कॉरस्पॉन्डिंग देखें, ज़ीरो हमारा है ज़ीरो डिजिट जो आपके पास डेसिमल में है 8421 2421 5211, ये कोड हम कर चुके हैं डिस्कस. 5421 भी हम. नेक्स्ट है 642 माइनस 3. 2 माइनस 3 में कोई भी किसी भी डिजिट के नीचे किसी भी वेट के नीचे 1 नहीं है, इट मीन्स ऑल ज़ीरोज़. नेक्स्ट हमने लिया, देखिए 1 कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया. 642 माइनस 3 के लिए नेक्स्ट इज़ फॉर 1. 1 के लिए 4 माइनस 3 इज़ दैट इज़ 1. ठीक है, तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 642 माइनस 3 दैट इज़ 1. 2 के लिए 0 0 1 0. 3 के लिए 6 माइनस 3. 4 के लिए 4 के नीचे 1 है, बाकी सब 0 हैं. स्टूडेंट आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि वेट का मतलब क्या होता है. वेट का मतलब है यहाँ पर अगर ये जो सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग ये था आपका 6 4 2 माइनस 3 ऐसा था. अब हम यहाँ देख रहे हैं 1 0 0 1 0 0 1. इनको मल्टीप्लाई करें 6 से. 6 प्लस 0 4 इंटू 0 प्लस 0 देन माइनस 3. 6 माइनस 3 इज़ 3. सो ये जो कोड है ये किसके लिए है, 3 के लिए है. तो इसी फॉर्मेट से हम चलते जाएं. अगर यहाँ पर देखिए जो कोड सिस्टम है 642 माइनस 3 के लिए ये हमारा 9 का कोड है. 9 के टाइम पर क्या हुआ, ऑल बिट्स आर 1 अंडर 642 माइनस 3. क्यों, क्योंकि अगर सभी का वेट हम करें प्लस तो क्या आ जाता है 9. यही रीज़न है कि नेगेटिवली वेटेड कोड्स का जो टोटल सम है वो 9 आता है बेटा. वो 7 वाला जो है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी. 642 माइनस 3. 8 के लिए देखिए क्या है 6 1 1 1 0 1 0. 1 0 1 0 मीन्स 6 प्लस 2 दैट इज़ 8. सेम मेथड वी कैन चेक आउट फॉर 8 4 माइनस 2 माइनस 1. देखिए जब भी कोई कोड गिवन होता है तो आपको सिंपली ये देखना है कि उस कोडिंग मेथड के अकॉर्डिंग उस कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स हम रखते हैं. अगर यहाँ पर हमारे पास था 8 4 माइनस 2 माइनस 1. अब यहाँ से उठा लेते हैं 1 0 0 1. इसका मतलब क्या हुआ, इनको मल्टीप्लाई करें अगर कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को वेट्स को और बिट्स को, दैट इज़ 8 प्लस 0 माइनस 1 दैट इज़ 7. तो अब हमें देखना है क्या ये 7 का कोड है 1 0 0 1. तो ये 7 का ही कोड है इन 8 4 2 माइनस 2 माइनस 1. स्टूडेंट्स इस तरह से आपके नेगेटिवली और पॉजिटिवली वेटेड कोड को यूज़ किया जाता है, लेकिन ये कोड सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 के लिए यूज़ होंगे. मीन्स अगर आपको बोला जाता है क्वेश्चन में लिखा गया कि 83 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 83 का मतलब है यहाँ पर जो वेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग 8 का कोड 4 बिट का और फिर 3 का कोड. नेक्स्ट वन इज सम डेफिनेशंस. ये हम लास्ट टाइम भी ले चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लेते हैं क्योंकि टेबल सामने है. सीक्वेंशियल कोड्स. सम कोड्स वेटेड कोड्स आर वन बाइनरी नंबर ग्रेटर देन इट्स प्रीसीडिंग कोड. मतलब एक कोई कुछ कोड आपका पिछले जो बाइनरी कोड है उससे एक ज़्यादा है, मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर डिफरेंस का 1 आएगा. अब सबसे बढ़िया एग्जांपल है 8421. ये सीक्वेंशियल है, बाइनरी काउंटिंग के अकॉर्डिंग ही है. दूसरा है एक्सेस 3 इसमें है नहीं क्योंकि एक्सेस 3 लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था. वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 को हम रिप्रेजेंट करते 3 का कोड, तो 3 से रिप्रेजेंट हुआ. 1 के लिए 4 का, 2 के लिए 5 का, 3 के लिए 6 का, 4 के लिए 7 का एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे आपका एक्सेस 3 का मतलब क्या था, जो डिजिट रिप्रेजेंट करने उसमें 3 प्लस किया और वो कोड आप रिप्रेजेंट करोगे. तो वो 8421 और एक्सेस 3 ये दोनों क्या है, सिक्वेंशियल कोड. सिक्वेंशियल कोड किसे बोलते हैं, जब कोड कोई भी ऐसा है जिसमें
कंजिक्यूटिव नंबर्स मीन्स नेक्स्ट नंबर का और प्रीवियस नंबर का जो बाइनरी नंबर है उनका डिफरेंस सिर्फ 1 आए। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी हमने डिस्कस किया था। ये वो कोडिंग सिस्टम होते हैं जहाँ पर अगर कोई कोड वर्ड है n और n का हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाले तो आए 9 माइनस n, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कोड ऑफ द कोड वर्ड ऑफ n बाय इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1। ऑल 0 एंड 1 के इंटरचेंजिंग मीन्स वंस कॉम्प्लीमेंट लेना, जो 0 है उसको 1 बनाया, 1 है तो 0 बनाया। सो द कोड विच हैज़ अ सम ऑफ नंबर इज़ 9 आर सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। एक तो ये है, एक एग्जाम्पल होता है एक्सेस 3। तो अब आपको वेटिंग सिस्टम समझ आ गया, वेट्स क्या रहते हैं। अब वेट का हमने देखा 5421 में कितना वेट है 12 है, 8421 में कितना है 16 है। तो ये कोड क्या होंगे, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड नहीं होंगे। इसके अलावा जो जो कोड जिनका सम कितना है 9 है, 2421 वेट इज़ 9, 5211 वेट इज़ 9, 642 माइनस 3 कितना हुआ ये 12 माइनस 3 9, 84 माइनस 2 माइनस 1 दिस इज ऑल्सो हैविंग वेट 9। तो एक तो वेटेड कोड में हमें जब भी चेक करना होता है तो ये सिंपल सा रूल है कि अगर किसी कोड का टोटल जो वेट्स हैं उसके वेट्स का सम 9 आ जाता है तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। दूसरा क्या है, एक्सेस 3 कोड भी एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। साइक्लिक कोड, next one is each successive code word differ from the preceding one in only 1 bit position and is known as cyclic code। cyclic code को हम अगर अच्छे से समझें, वैसे तो इसको डिटेल में अभी लेंगे हम, ग्रे कोड इज साइक्लिक कोड। बट आप देखिए सपोज ये 3 का कोड है और ये है 4 का कोड, ये है 5 का कोड, नेक्स्ट इज 6 कोड, और इससे पहले हम अगर ले 2 का कोड। ठीक है, जब 2 से 3 पर मूव करते हैं तो कितने बिट्स की चेंज की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 बिट, दिस बिट नीड टू चेंज। ठीक है, अब 3 से 4 पर हमने मूव किया, 3 से 4 पे मूव किया, इसका मतलब क्या है, एक तो ये बिट चेंज हुई 0 से 1, फिर 1 से 0 और ये 1 से 0, कितने चेंजेस आए 3 चेंजेस। अब अगर 4 से हम 5 पे चेंज करेंगे, मूव करते हैं तो ओनली 1 चेंज। नेक्स्ट 5 से 6 पे करेंगे तो 2 चेंजेस, 0 से 1 बना और 1 से 0। इट मीन्स इस तरह के कोड को हम वहाँ पर साइक्लिक कोड नहीं बोलते। साइक्लिक कोड क्या होते हैं, जो कंप्लीट अगर हम डिस्कस करें, जो कोड प्रीवियस है और नेक्स्ट कोड पर हम मूव करें तो सिर्फ एक बिट चेंज करते ही नेक्स्ट बिट का या नेक्स्ट डिजिट का कोड हम राइट कर पाए, दैट इज साइक्लिक कोड। तो स्टूडेंट्स साइक्लिक कोड अब हम डिस्कस कर रहे हैं। बीसीडी कोड्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बीसीडी कोड का मीनिंग क्या है, बीसीडी कोड कैसे राइट करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने लिया है 8421 का, 8421 में 11 का कोड दिखाया, तो 11 का मतलब है 4 बिट 1 के लिए, फिर से 4 बिट 1 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि कभी भी ये 11 का मतलब ये वो कोड नहीं आएगा 1011, वो नहीं आएगा। अब कोड क्या रहेगा, वही जो आप यहाँ पर इंडिविजुअल डिजिट्स का, तो यहाँ क्लियर भी किया हुआ है, देर आर 6 इलीगल कॉम्बिनेशंस, मीन्स 10 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 11 को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, 12 को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट मीन्स अगर 15 को रिप्रेजेंट करना है तो 15 को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या रहेगा, 15 के लिए आपको 1 का कोड 00001 और 5 का कोड इसके साथ ही नेक्स्ट 0101, ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एज पर दीज नोट्स और एज पर योर बुक। आपकी बुक में भी बीसीडी अर्थमेटिक गिवन है कि बीसीडी में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और यहाँ पर भी गिवन है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना डिटेल हमें नहीं करना। रीज़न बीइंग अगर ये कंप्लीट यूनिट होती तो हम इतना डिस्कस करते सॉरी, तो यहाँ पर हम इतना डिटेल नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कि बीसीडी अर्थमेटिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ग्रे कोड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम आज मेन टॉपिक के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नॉन वेटेड कोड स्टूडेंट्स। अब नॉन वेटेड कोड, सबसे पहली बात है कि ग्रे कोड एक हम डायरेक्ट राइट करें तो डायरेक्ट राइट करने में हमारे पास कंसेप्ट अलग आ जाता है, लेकिन ग्रे कोड मैनुअली अगर मैं आपको सिर्फ टेबल शो कर दूं और आपको बोल दिया जाए कि इसे क्रैम कीजिए तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से ग्रे कोड बनाया जाता है। पहली बात, ग्रे कोड हमारा 0 से लेकर 15 तक रहेगा, टोटल 16 कोड्स होंगे, जो कि पहले वाले कोड्स में ऐसा नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप 1 बिट का कोड लिखते हैं, 1 बिट का कोड लिखा, ठीक है।
फिर आप क्या करेंगे, 2 बिट का कोड बनाने के लिए इसकी मिरर इमेज मीन्स यहाँ पर 1 फिर 0, मिरर इमेज ऐसे ही बनती है। जो अपर मिरर इमेज पार्ट है उसको हम लेते हैं यहाँ MSB 0, यहाँ भी MSB 0, नीचे वाले पार्ट को MSB 1 1। इस फॉर्मेट में बना आपका 4 बिट का ग्रे कोड। अब इसी से बनाएंगे हम 8 मीन्स 2 बिट का ग्रे कोड बनाया हमने 4 कॉम्बिनेशंस। अब इसी से हम बनाएंगे 8, इसकी मिरर इमेज लें 1 0 1 1 0 1 एंड 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, मिरर इमेजिंग ली। अब अपर पार्ट का MSB, इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर नेक्स्ट चलिए 0 1 मिरर इमेज 1 0 upper part 0 0 sorry lower part is 1 1। नेक्स्ट मिरर इमेज, 4 कॉम्बिनेशंस बन गए, इनके मिरर इमेज क्या आएगी 1 0 1 1, दिस इज 0 1 राइट, दिस इज 0 0 1 0 0। ठीक है, अपर 4 कॉम्बिनेशंस का आप 3 बिट का ग्रे कोड बनाना है, कितने बनेंगे 3 बिट से, टोटल 2 raised power 3 इज 8। तो यहाँ पर हमारा लोअर पार्ट का हमने लिया MSB 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कोड 0 के लिए है, ये कोड 1 के लिए, दिस इज़ फॉर 2, दिस इज़ फॉर 3 4 5 6 एंड 7। इस फॉर्मेट में ये कोड है। अब आपके सामने है कि जिस तरह से हमने ये बनाया वही फॉर्मेट इन्होंने भी यूज़ किया है। अब हम इन्होंने जो यूज़ किया उसको एक बार ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, 1 बिट का, फिर उसका मिरर इमेज लिया 1 0, अपर पार्ट का MSB 0, लोअर पार्ट का MSB 1। मिरर इमेज रिफ्लेक्टिव कोड भी बोला जाता है, मीन्स मिरर रिफ्लेक्शन का हम यूसेज करते हैं टू जनरेट द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अब 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4, 2 raised power 2 4 कॉम्बिनेशन बन गए 2 बिट से। 3 बिट का ग्रे कोड बनाना है, फिर से क्या किया, मिरर इमेज 1 0, ये देखिए 1 0 1 1 0 1 0 0। अपर 4 के लिए 0, ये 6 दिखाई दे रहा है आपको, शायद प्रॉब्लम इसमें टाइपिंग में है। ठीक है, अब आप देखिए ये कॉलम और ये जो एंट्री है, ये 3 एंट्री, इसको भी आप कंसीडर करेंगे जो 0 इसमें लिखा हुआ है। सो ये कॉम्बिनेशंस आर सेम राइट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही आती है, हाउ टू जनरेट, हाउ टू रिमेंबर ग्रे कोड्स। तो आपको स्टूडेंट्स ये दिक्कत ना आए, आप क्रैमिंग ना करें, आप कंसेप्ट समझिए। जब भी कितने आपको 4 बिट का, 3 बिट का ग्रे कोड बनाना है, 5 बिट का, 6 बिट का, वो डिपेंड करता है, लेकिन ग्रे कोड बनाना कैसे वो आपको समझ आना चाहिए। 1 बिट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 1, फिर उस 0 1 को क्या कीजिए, रिवर्स मीन्स मिरर इमेज ले दीजिए। मिरर इमेज ली तो यहाँ पर क्या आया, 1 नीचे फिर 0, मीन्स पास की चीज़ पास में और दूर की चीज़ दूर दिखाई देगी। फिर वही एज इट इज़, जब 2 बिट, फिर क्या करना है, मिरर, जहाँ मिरर इमेज मीन्स मिरर लगाया, अपर पार्ट है, अपर बिट से उनका MSB 0 0, लोअर का 1 1। फिर से नेक्स्ट के लिए आप मिरर इमेज एज इट इज़ 1 0 देन 1 1 0 1 देन 0 0, अपर के लिए 0 0 और लोअर के लिए 1 1। तो ये कंसेप्ट आप यूज़ करते चलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ 4 बिट कॉम्बिनेशन। अब 4 बिट कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे अगर, तो 4 बिट में यहाँ हम ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, बट आप खुद देखिएगा 4 बिट में जो मिरर इमेजिंग कंसेप्ट है वो अभी भी वही है। इमेजिंग कंसेप्ट अगर हम देखें, मिरर इमेजिंग 3 बिट का कोड हमने, अगर इसको हम थोड़ा टाइम के लिए हाइड करें MSB को, तो MSB को हाइड करते हुए देखिएगा यहाँ पर हम कर नहीं पा रहे हैं। चलिए 4 बिट का कोड बनाने के लिए 3 बिट का कोड एज इट इज़ मिरर इमेज ली। अपर जो 8 कॉम्बिनेशन उनकी MSB 0 लगा दी, लोअर 8 कॉम्बिनेशन की MSB 1 लगा दी। तो इस तरह से 4 बिट का कॉम्बिनेशन कितने बने, टोटल 16 राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ ग्रे कोड एक ऐसा कोड है जिसमें हम 16 कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जब भी ग्रे कोड होगा 2 raised power में होगा, जबकि हमने 8 4 2 1 कितना लिया, 0 2 9, 10 ही कॉम्बिनेशन यूज़ किए। एक्सेस 3 के हमने कितने कॉम्बिनेशन यूज़ किए, एक्सेस 3 के लिए फिर से हमने कितने कॉम्बिनेशन यूज़ किए, ओनली 0 2 9।
ठीक है, इसीलिए ये एक्सेस 3 ग्रे कोड हमें डिस्कस नहीं करना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इतना पार्ट हमें डिस्कस करना है। एक्सेस 3 ग्रे कोड, सॉरी एक्सेस 3 कोड, तो एक्सेस 3 का मतलब सिर्फ क्या था, जो बाइनरी कोड है उसमें 3 ऐड कर देना। तो 9 का कोड क्या होगा, जो 12 का कोड होता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 दीज आर नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड मीन्स जब इससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, डोंट केयर कंडीशंस। स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। डिजिटल सर्किट इसमें सब्जेक्ट में हमारे पास जो भी अब यहाँ चैप्टर 1 में मीन्स हम यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे, वही यूनिट 4 में हम यूसेज करेंगे, एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो एक्सेस 3 कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 9। तो यहाँ पर 10, 11, 12 अप टू 15 डोंट केयर कंडीशन बन जाएगा। सेम वे 8, 4, 2, 1 का हम कितना यूज़ करते हैं, 0 to 9। तो वहाँ पर भी 10 to 15 क्या है, डोंट केयर। अगर हम कहीं यूज़ करें आगे नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड मीन्स अगले कोड कन्वर्जन करेंगे, अगर एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना मीन्स हमें कोई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है जो क्या करेगा, एक्सेस 3 कोड को 8421 में कन्वर्ट करे, या 8421 को किसी दूसरे कोडिंग सिस्टम में कन्वर्ट करे, एक्सेस 3 में कन्वर्ट करे। तो जो भी कन्वर्जन्स है वहाँ पर हमें ये देखना है कि इनपुट में कितने कॉम्बिनेशन यूज़ हुए और आउटपुट में कितने हैं। सपोज यहाँ ग्रे कोड टू हमें एक्सेस 3 कन्वर्ट करना है, तो ग्रे कोड में कितने कॉम्बिनेशन बने, 16, लेकिन एक्सेस 3 में कितने यूज़ हुए, ओनली 10, राइट। तो ये चीज़ें मेन है बेटा, ये आपको ध्यान से देखना है। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो यूनिट 4 आप नहीं कर पाएंगे। तो ग्रे कोड कैसे बनना है ये तो क्लियर होगा कि 0, 0, 0, 1 एक बिट का, उसकी मिरर इमेज ली और अपर पार्ट की एमएसबी 0 कर दी और लोअर पार्ट की 1 कर दी। 2 बिट का कोड बना, उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, 3 बिट का कोड। 3 बिट के कोड के लिए क्या किया फर्दर, मिरर इमेजिंग ली। मिरर इमेजिंग का अपर 4 कॉम्बिनेशंस के लिए 0 एमएसबी, लोअर के लिए 1, 1 एमएसबी। नेक्स्ट 4 बिट के लिए मिरर इमेजिंग ली 3 बिट के कोड की, और अपर पार्ट की एमएसबी 0, लोअर पार्ट की 1। ये डेसिमल इनके इक्विवेलेंट है 0 से लेकर 15 तक। 0 से 15 तक सिर्फ और सिर्फ ग्रे कोड में यूज़ हुआ है बाइनरी कोडिंग चैप्टर के अंदर। कोड्स का मतलब होता है एक टिपिकल जो आपने सिंबल लिखा उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 बिट का कोड, राइट। तो अगर यहाँ पर हमें 56 का ग्रे कोड निकालना है तो 56 का ग्रे कोड का मतलब है 5 का अलग और 6 का अलग। 5 का ग्रे कोड क्या हुआ, 01111, और 6 का ग्रे कोड क्या हुआ, 0101, राइट। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको कोई सिंबल दे दिए, उसको आप 8421 में भी कन्वर्ट कीजिए, आप उसको ग्रे कोड में भी कन्वर्ट कीजिए, एक्सेस 3 में भी कन्वर्ट कीजिए। तो वो असाइनमेंट आपको सेपरेटली मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर 4 बिट ग्रे कोड। अब अगर हम बात करें यहाँ 6 बिट ग्रे कोड, 7 बिट ग्रे कोड, तो आप कहोगे मैम बहुत लंबी टेबल हो गई, हम कैसे इसको जनरेट करें। तो उसके लिए हम अलग अपना मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सेस 3 है। एक्सेस 3 आपको लास्ट टाइम करवा चुके हैं। एक्सेस 3 का मतलब दोबारा एक बार देख लेते हैं। एक्सेस 3 इज़ ए 4 बिट सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और अभी भी बोल रहे हैं। सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जिसका कोड हमें पता है और दूसरे का पता करना है तो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, और जो ओरिजिनल नंबर था उसके कोडिंग का 0 to 1 और 1 to 0 कर दीजिए, 1's कॉम्प्लीमेंट ले दीजिए, वो उसके 9th कॉम्प्लीमेंट का कोड आ जाएगा। इट कैन बी रिटन एज XS3। XS3 मीन्स XS3 द कोड फॉर ईच डेसिमल डिजिट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टू द कॉरस्पॉन्डिंग BCD कोड वर्ड। इट इज़ सिक्वेंशियल कोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है, जो भी ऑपरेशंस हैं वो एक सीक्वेंस में चलेंगे। 3 का कोड वो है आपका 6 के लिए 6 वाला कोड, 4 का कोड जो है वो आपका 7 का कोड, एंड सो ऑन। सो इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। XS3 कोड हैज़ बीन यूज्ड इन सम older computer systems. In addition of being self-complementing, thereby making a subtraction easier, this code enable simpler arithmetic hardware. BCD कोड को भी हम यूज़ करते हैं इन्हीं के लिए। तो हर एक कोड का आपको यूसेज भी एक नोट्स फॉर्मेट में बनाना है। कोडिंग सिस्टम क्या है, उसके यूसेज क्या है और लिमिटेशन क्या है। दिस कोड इज़ इंक्लूडेड हेयर फॉर completeness and is no longer commonly used. It has 6 invalid states. कौन से हैं वो, एक तो 0 से लेकर 3 तक की एंट्री, सॉरी 2 तक की एंट्री। 0 का कोड हम यूज़ नहीं करते जो बाइनरी में है। 1 के लिए ये कॉम्बिनेशन हम कहीं यूज़ नहीं करते। क्यों, XS3 में तो 0 को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0011 मीन्स 3 का कोड, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे 13, 14 और 15 के कोड है वो भी हम यूज़ नहीं करते हैं। सो दीज आर नॉट इंडिकेटेड इन टेबल 2.6। तो 2.6 कौन सी टेबल थी, अभी जो हमने ऊपर डिस्कस की। तो यहाँ आप खुद देख लीजिए ये कोड हमारे यूज़ नहीं हुए।
राइट स्टूडेंट्स। तो ये एक्सेस 3 ग्रे कोड बेटा नहीं करने हैं आपको, सिर्फ ये कोड करना है, ठीक है। यहाँ पर 0 0 0 ऑल ज़ीरोज़ और फिर उसके बाद 13 14 15 का कोड आप यूज़ नहीं करेंगे, 0 और 1 और 2 का कोड भी आप यूज़ नहीं करेंगे जो बाइनरी में होता था। एक्सेस 3 अर्थमेटिक नहीं करनी, डिटेल में बुक में भी गिवन है, इन नोट्स में भी गिवन है, आपको नहीं करनी। नेक्स्ट वन इज़ ग्रे कोड। तो अब ग्रे कोड क्या है, ग्रे कोड हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस थ्योरी पार्ट यू कैन डू बाय योर ऑन। हम ले लेते हैं यहाँ पर इसका यूसेज क्या है। अब ये कहते हैं यहाँ पर हमारा ग्रे कोड क्या है, द ग्रे कोड इज़ नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इट इज़ साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड आपको बताया था, साइक्लिक कोड उसे बोलते हैं जब आपके एक कोड से नेक्स्ट कोड पर चले तो सिर्फ एक बिट का ही चेंज आए। और जब हमने के मैप किया था तो वहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ किया था, वी आर यूजिंग ग्रे कोड। तो ग्रे कोड देखा आपने 0 0 0 1 1 1 1 0, तो ऐसे हमने के मैप में कॉम्बिनेशंस लिए थे रो हेडर और कॉलम हेडर के। तो ग्रे कोड ही एक साइक्लिक कोड है जिसे आप यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं और रिफ्लेक्टिव कोड भी बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव क्यों, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन मेथड से इसे जनरेट किया। इट इज़ अ 4-bit कोड इन विच द 16 कोड वर्ड्स आर selected such that there is a change in only 1 bit position as we move from one code to another to the adjacent code word। मीन्स पीछे जाएं बैक साइड 4 से 5 पर जाएं या 4 से 3 पर जाएं, सिर्फ एक बिट का ही चेंज करना पड़े। बिकॉज ओनली 1 bit चेंज फ्रॉम कोड वर्ड टू कोड word, it is easier to detect an error if there is a change in more than 1 bit। मीन्स जब आपको 3 से 4 पे जाना है, 4 से 5 पे जाना तो एक ही बिट का चेंज होगा, अगर 2 चेंजेस हुए तो कहीं ना कहीं एरर है। सो दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट यूजेबल इन सॉफ्ट मशीन्स। सो यूसेज बताना आता है कई बार क्वेश्चन में, एक्सप्लेन ग्रे कोड एंड गिव एप्लीकेशंस ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ ए सॉफ्ट पोजिशन indicator, assume that the shaft position is divided into 16 sectors। means एक position को ये जो 16 complete position 16 है और indicated by the gray code। as the shaft rotates the code word changes if at any time there is a change in 2 bit of the code। means 2 changes हैं, 2 bit में changes हैं, compared with the previous one there is an error। तो ये बहुत सिंपल मेथड है कि आपके कोड में, क्योंकि सीक्वेंस में चलेगा तो 2 ही बिट का मीन्स एक ही बिट का चेंज आना चाहिए, 2 आया तो एरर है। सेवरल साइक्लिक कोड्स हैव डिवाइस्ड एंड आर कॉमनली यूज। मीन्स सिर्फ यही कोड नहीं है जो साइक्लिक है, राइट। तो दूसरा हमारा रहेगा इसमें जो यूसेज हमें यहाँ से करना डिस्कस, कहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है, these gray codes are used in instrumentation and data acquisition। instrumentation means जो devices की implementations में requirement है। data acquisition means we are getting data from some another device where linear or angular displacement is measured। स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हम कभी टाइप ऑफ कंप्यूटर करते हैं तो सबसे पहले आया था एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में भी इंस्ट्रूमेंटेशन का मेन एम था, डाटा एक्विजिशन का इसलिए था कि कहीं से भी हम डाटा गैदर करते हैं, चाहे कोई भी सर्किट ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट कैन बी लीनियर और कैन बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए भी सॉफ्ट मशीन में इसका ग्रे कोड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज इन सॉफ्ट एनकोडर्स, एनकोड करना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है एडी, ए का मतलब एनालॉग और डी का मीनिंग है डिजिटल। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन्स अगर हम कहें कि एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो भी हमें ऐसे कोड्स की रिक्वायरमेंट है। एंड अदर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में और पेरिफेरल्स में इसका यूज़ होता है। तो ये जो आपको एग्जाम्पल इन्होंने शो किया बुक में भी गिवन है, ये आप करते रहिएगा। नेक्स्ट वन इज़, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेन जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी आता है, कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू ग्रे। तो 2 टॉपिक हैं, बाइनरी टू ग्रे, उसके बाद हम करेंगे ग्रे टू बाइनरी। ये आज हमारे मेन टॉपिक चलेंगे। आज एक ही टॉपिक करते हैं इससे, क्योंकि एक ज़्यादा हो जाएंगे। एक पर हम पहले अपना हैंड स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इन एन बिट बाइनरी नंबर, कोई बाइनरी नंबर है जिसको हमने bn, bn-1, bn-2 एंड b1 रिप्रेजेंट किया है, एंड इट्स ग्रे कोड इज
जी एन माइनस वन, जी एन माइनस टू एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमें बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी से ग्रे। ये है आपके पास बी एन, ये सपोज B4, B3, B2, हम 4 बिट का ही कोड लेते हैं, और B1, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हम एग्जांपल की फॉर्म में ले रहे हैं 1 0 1 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने लिखा यहाँ पर G4 ग्रे 4th बिट, ग्रे 3rd बिट, ग्रे 2 एंड ग्रे 1। रूल कहते हैं, रूल आपको वहाँ पर रीड भी करेंगे, बट रीड करने से पहले प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखिए। ये कहते हैं MSB। MSB क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये तो यही है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? B4। B4 को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, ठीक है, ये तो हो गई कॉपी। अब इन दोनों को आप एक्सोर कर दीजिए। एक्सोर का मतलब क्या होता है? एक्सोर ऑपरेशन। अगर आपको एक्सोर ऑपरेशन नहीं समझ आता तो सिंपली आपको सिंपल मेथड बताते हैं, दोनों बिट्स को ऐड कीजिए और जो कैरी आए उसको इग्नोर कीजिए। दोनों बिट्स को ऐड किया, क्या आया आंसर? 0 + 1 = 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट B3 और B2 को हमने क्या किया? प्लस किया या एक्सोर किया। एक्सोर का रिजल्ट भी तभी 1 आता है जब दोनों बिट्स डिफरेंट हो। अगर दोनों बिट्स सेम हो तो आंसर क्या आता है? 0। तो यहाँ पर भी हम सिंपली, अगर आपको एक्सोर भी दिक्कत कर रहा है तो आप सिंपली रखिएगा, दो बिट्स को आप अभी ऐड करेंगे, अगर कोई कैरी आता है तो उसे इग्नोर करेंगे। इन दोनों का सम क्या आया? दैट इज़ 1। और नेक्स्ट के लिए फिर से हम चले, B2 और B1 को एक्सोर किया या सम किया, 1 1 + 1 = 1 0। अब 0 हम प्लेस करेंगे यहाँ पर क्योंकि सम है, और कैरी को इग्नोर कर देंगे। ये एक्सोर ऑपरेशन देखें स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा? 1 and 1, तो दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट क्या आता है? 0। तो यहाँ जो ग्रे कोड बना दैट इज़ 1 1 0। और बाइनरी क्या था? बाइनरी कोड था हमारा 1 0 1 1, ठीक है। ये फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। तो बेसिक क्या है, जो आपका MSB है उसको हम एज इट इज़ कॉपी करते हैं, और नेक्स्ट जो ग्रे बिट्स हैं वो कैसे बनेंगी? बाइनरी कोड जो BN है और BN-1 उनको एक्सोर ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट BN-1 और BN-2 एक्सोर करेंगे, एंड सो ऑन। कब तक? जब तक B2 और B1 एक दूसरे से एक्सोर नहीं करते। एक्सोर करें या सम करें और कैरी को इग्नोर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं थियोरेटिकल पार्ट जो इन्होंने दिया है। In n-bit binary number represented by Bn, Bn-1, Bn-2 up to Bn, it is a gray code equivalent by Gn, Gn-1 मीन्स, देखिए सबसे पहली बात तो यही कि जितने बिट का बाइनरी होगा उतने बिट का ही ग्रे कोड होगा, बिट चेंज नहीं होंगी। 3 बिट का है तो 3 बिट का ही आंसर आएगा। वेयर Bn and Gn are MSB, then ग्रे कोड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बाइनरी कोड एज फॉलोज। क्या दिया था आपको रूल? सबसे पहले MSB को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बिट आएगी जो ग्रे की बनेगी Gn-1, ये यहाँ इन्होंने मिस्टेक की है। देखिए कई बार क्या होता है, हम ऑनलाइन कॉपी कर लेते हैं बट स्टिल दे हैव सम इश्यूज। तो यहाँ क्या आएगा बेटा? Gn-1, दिस इज Gn-2, ठीक है। आपने समझ भी लिया है कि जो MSB बिट है वो एज इट इज़ कॉपी की। नेक्स्ट बिट के लिए क्या किया? MSB प्लस नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड की बिट है उसको एक्सोर किया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक हमारे पास G1 कंप्यूट नहीं हो जाता। सॉरी। नेक्स्ट वन इज व्हेन एक्सोर स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव ओर। तो किसी को एक्सक्लूसिव ओर में दिक्कत है, अगर एक्सक्लूसिव ओर में दिक्कत है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 0 है तो एक्सक्लूसिव का मतलब आंसर है 0, और 1 1 है तो भी 0। सिर्फ दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे, देन ओनली द आंसर विल बी 1। या हम सम भी देखें तो सम भी यही है, सम एंड इग्नोर द कैरी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मेथड। अब एक बार जिस मेथड को हम ले लेते हैं, रिकॉर्ड द MSB ऑफ द बाइनरी एज अ ग्रे कोड, add the MSB of the binary to the next bit in the binary, record the sum and ignore the carry। जो आपको वहाँ प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाया था वही स्टेटमेंट है, या एक्सोर करें। दिस सम इज द नेक्स्ट बिट ऑफ द ग्रे कोड,
एड सेकेंड बिट ऑफ द बाइनरी टू द थर्ड बिट ऑफ द बाइनरी मीन्स ये कहाँ से ले रहे हैं, लेफ्ट साइड से कंसीडर करें, थर्ड टू फोर्थ एंड सो ऑन. रिकॉर्ड द सब्सिक्वेंट successive sums as the successive bit of the gray code until all the bit of the binary number are exhausted. तो अब देखिए ये क्वेश्चन 1001, इस केस में भी क्या किया इन्होंने, MSB को डायरेक्टली यहाँ पर प्लेस कर दिया और फिर देखेंगे नेक्स्ट बिट हमारी कैसे कैलकुलेट की. यहाँ देखें इन दोनों पर क्या किया, एक्सोर ऑपरेशन. एक्सोर ऑपरेशन का रिजल्ट क्या आया 1. फिर इन दोनों पर एक्सोर, इसका रिजल्ट क्या है 0. इन दोनों पर एक्सोर, रिजल्ट इज़ 1. तो ये आपका इस मेथड से आएगा. अब सेकंड मेथड इन्होंने दिया है, आपको अच्छा लगे तो कीजिए, बाकी मैं आपको यही कहूँगी फर्स्ट वन पे ही स्टिक रहिएगा क्योंकि यही आपकी बुक में है. ज़्यादा मेथड करेंगे तो मिस्टेक ज़्यादा होने के चांसेस हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज का हमारा ग्रे टू बाइनरी कल करेंगे. आज का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग अब आपको अटेंडेंस मार्क कैसे करवानी है कि एक सम दिया जाएगा, जैसे ही URL इसका भेजा जाएगा आपके पास वीडियो का, और वो सम आपको सॉल्व करने और अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है.